एंड व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू इन स्टॉक मार्केट इज कि हमारा जो एसेट है इट शुड बी कैश प्रोड्यूसिंग एसेट, राइट? जिसको अभी हम देख रहे थे, जो अपना लास्ट कनेक्ट किया था, विच वाज फ्री कैश फ्लो. नाउ any asset which is producing cash, what we have to do is we have to estimate the amount of cash which we are able to take out from that asset during its lifetime, जब तक वो सड़ गल के खराब नहीं हो जाता. तो मानो अगर मेरा एसेट 20 साल के लिए चलेगा या 25 साल के लिए चलेगा, वो तो मुझे पता नहीं, बिकॉज एट मेनी टाइम्स द बुक डेप्रिसिएशन कुड बी मोर और लेस देन द एक्चुअल डेप्रिसिएशन. एंड सिमिलरली फॉर अ बिजनेस आपका 10 साल में खत्म होगा, 20 साल में खत्म होगा, 50 साल में होगा, वो किसी को नहीं पता होता. सो वी डोंट नो द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस. सो व्हाट वी डू इज वी एस्टिमेट द नेक्स्ट 10 year फॉरवर्ड कैश फ्लोज, and then we put up a terminal growth rate which usually slows down after 10 years as the business matures, and then we discount back the cash to with a discounting multiplier to today's rate. So when this happens, we are able to get some judgment ki what amount of money I am putting up today investing and what amount of money I will be able to take out from the business during the life time of the business, which might be 10, 15, 20 years down the line. जब मेरे को ये एस्टिमेट मिलेगा तो मुझे ये जाके समझ में आएगा कि मेरा कैगर कंपाउंडिंग रिटर्न कितना हो सकता है. सो इंट्रिंसिक वैल्यू टेल्स यू, इट गिव्स यू एन एस्टिमेट कि आपको आज कितना वैल्यू देना चाहिए. एंड दिस वैल्यू इज नॉट स्टॉक प्राइस, दिस वैल्यू इज मार्केट कैप. सपोज आपकी मार्केट कैप कंपनी है, सपोज द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी इज 5,000 crores, and you do an intrinsic value test to get to a judgment that this cash which I'll be able to take out from the business in the next 5 years, 10 years, 15 years, suppose that is 15,000 crores, right? And today as your market is 5,000 crores, so you are getting to a 3x multiple. But I don't want to invest money at a lower rate of return getting to 15,000 crores where other options are available. मतलब अगर आज मैं कितना पैसा लगाऊं, अगर मुझे बैंक एफडी 5% या 7% देता है to get to a number of 15,000 crores in 10 years, if the return metrics is higher than the other available options in the market, that is the time I am getting discount to the intrinsic value. मतलब अगर आप कैलकुलेट कर सकें कि 10 साल में मुझे 15,000 करोड़ चाहिए जो मेरे को ये बिजनेस दे रहा है, हाउ मच मनी आई नीड टू पुट टुडे, बीटिंग इन्फ्लेशन, बीटिंग एफडी रेट्स, बीटिंग एवरीथिंग. सपोज आई वांट टू ग्रो माय इन्वेस्टमेंट एट 15% year over year CAGR and get to a number of 15,000 crores in 10 years. So what should be my starting amount? Now this starting amount we compare with the current market cap today, and this is how intrinsic value is done. कहना बहुत आसान है, but when you get to the calculations you will go upside down. So when I am, the logic says when I am getting an estimate, when I am getting a business at intrinsic value or maybe lower than intrinsic value, I should load my truck. So इसलिए मैंने आपको बोला कि when you are investing, you need to load your truck when you are buying in your first instance, and when you go up and when you are not cheaper than your intrinsic value, when there is no margin of safety, you should not average, you should not add more stocks on the upside. But आज जमाना बदल गया है. आज क्या हो गया है, we go in, suppose we want to buy 100 shares, so we go and buy 10 shares in first part, then as the trend starts and the trend breaks and higher high comes, we go on adding more to the upside. तो डिपेंड्स अपॉन योर अप्रोच कि आप मार्केट को कैसे देखते हैं और आप मार्केट को कैसे अप्रोच करना चाह रहे हैं. आर यू एन इन्वेस्टर और आर यू अ ट्रेडर? सो दोनों के आंसर्स अलग अलग हैं. The members who have joined, don't worry, whatever I have said is audio recorded. I'll wait for 5-10 minutes जब तक बाकी का, बिकॉज 7 बजे का शेड्यूल था एंड पहले का क्लास आई वॉज नॉट एबल टू डू बिकॉज ऑफ माई ओन वर्क कमिटमेंट्स. So in meanwhile, next 10-15 minutes, anybody has questions, we can do a small Q&A. सर वो आपका आवाज कम है सर. सर मेरी आवाज आ रही है? चलिए आ रही है. हाँ अभी आ रही, बोलिए सर.
एक्चुअली तो आज तक रुपये का मैं अभी ऑफिस में हूँ, तो आज का रुपये का क्या स्टेटमेंट बन गया था? एक्चुअली एज ए ग्लांस दोपहर का मैंने भी करने का कोशिश किया था, मेरा भी काम में ध्यान था और इधर ध्यान नहीं था, तो वो 10-15 मिनट में बंद कर दिया था, रिकॉर्डिंग डाल दिया मैंने, तो ऐसे विल डू इट आराम से इवनिंग में। तो अभी कौन सा टॉपिक अभी लेने चाहते हैं आप? सर एक्सेल शीट को आगे लेके चलेंगे, जो ईयरली शीट में हम चल रहे थे उस एक्सेल शीट को आगे लेके चलेंगे, एंड वील बी गोइंग इनटू सम गुड टॉपिक्स व्हिच शुड मेक सेंस टू यू once you start looking at businesses. So we have 10-15 minutes. तो निखिल जी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं उस क्वेश्चन का उनको आंसर दे रहा था। निखिल जी, just to add to your question, so there are 3 types of valuations. I hope आपने कभी इस बारे में वर्कआउट किया होगा थोड़ा। Yes, sir. One is intrinsic value, which we discussed briefly. Another one is relative value. Relative value मतलब मेरा कोई asset है which is not producing cash today, might produce cash in the future part of the life of the asset, and what are the other assets available in the market, or what are the other options available in the market which can give me some better return. So I will compare my asset in equation which I want to invest in with the other options available in the market. So this is called relative valuation, और आज के जमाने में 95% of the market will use relative valuation because it is easy to do and quick to understand. Intrinsic value it's a lot of jamila to do. And the third part is option pricing model. What do I mean by this is, suppose आपका कोई तेल का कुआं है, आप ONGC हो या आप कोई माइनिंग कंपनी हो, आपका कोई एसेट है जिसमें आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, अगर उसके अंदर से मिनरल निकल गया या तेल के कुएं में से तेल निकल गया तो उसकी वैल्यू है, और अगर आपका एक्सप्लोरेशन फेल हो गया तो आपकी वैल्यू नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। जैसे कंटीजेंट लायबिलिटीज होती हैं बैलेंस शीट के ऊपर कि अगर प्रॉब्लम हुई तो लायबिलिटी बनेगी, नहीं प्रॉब्लम हुई तो लायबिलिटी नहीं बनेगी। So that is called option pricing model, which is a very small bucket in finance, in our listed equities and our unlisted market. So mostly आप लोग relative valuation ही यूज करने वाले हो, जिसको आप PE बोलते हो या प्राइस टू सेल बोलते हो या प्राइस टू बुक बोलते हो, बहुत सारी चीजें। अनदर थिंग, PE बहुत फेमस बज वर्ड है बट बहुत मिसलीडिंग बज वर्ड है। तो केवल PE पे देख के कभी डिसीजन नहीं बनाना है कि यार 10 का PE ये तो सस्ता है और 40 का PE ये तो महंगा है, ऐसा कभी नहीं होता है। In today's market, because markets are very dynamic and the smartest people around the globe are sitting in the markets, so they can fool us anytime with PE. So anybody is giving you gyanbaji on PE, just avoid the noise and move out of it, because there are several answers to PE. सर वॉइस क्रैक है, आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। आई थिंक नेट स्लो है आपका। मार्केट अप होता है तो पी तो एकदम भागते ही रहता है। हेलो am I audible? Because my system also got stuck. किरण सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे? Yes, sir. Audible.
हाँ किरण सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आई थिंक ही इज नॉट देयर ऑन द कॉल। किरण जी वो आप, मैं सर, हाँ बोलिए सर, बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मार्केट अप होता है हम्म, तो पी तो कहाँ के कहाँ। सो तो बेसिकली वो तो, और समटाइम इट इज ऑलवेज मिसलीडिंग। तो ओनली जो क्वेश्चन अपन हर बार जो वी आर डिस्कसिंग, हम्म, पर्टिकुलर तो मैं तो मेरी हेडलाइन देख रहा हूँ, हम्म। सेल्स क्या जा रहा है, सेल्स के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिकॉज मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज माई स्पाइन। नहीं नहीं सर, बिकॉज अगर वो गले, बात वो नहीं हो रही थी, बात वैल्यूएशन की हो रही थी और इंट्रिंसिक वैल्यू की हो रही थी। तो रिलेटिव वैल्यू में एक मेजर बज वर्ड है पीई, तो मैं इसलिए उसके बोल रहा था पीई के बारे में, कि पीई को केवल पीई को देख के डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। तो एक वो, और वो तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी अपन पकड़ लेते हैं कि अगर कुछ है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल, तो वो तो इतने अंदर घूमते जाएंगे तो वी गेट ऑलवेज लॉस्ट। तो जो एकदम इजी, और बिकॉज ये जर्नी में जितना इजी होगा ना, उतना आगे चल के मजा आएगा, जो मैं समझता हूँ। आई डोंट नो। we will look at investing with a catalyst, and when we try and understand the catalyst, तब हमारे को और समझ में आने लगेगा कि बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग। सो अभी जब वैल्यूएशन बॉक्स के ऊपर आएंगे, वी सी व्हाट इज देयर इन द वैल्यूएशन बॉक्स एंड व्हाट मेट्रिक टू यूज एंड व्हाट मेट्रिक नॉट टू यूज। तो वो धीरे धीरे आएगा। तो इफ यू अलाउ, आई थिंक इट्स टाइम वी शुड कंटिन्यू विद द current part. ओके। तो कॉल विल बी रिकॉर्डेड, सो डोंट वरी फॉर द रिकॉर्डिंग्स। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, पहले का मैंने रिकॉर्डिंग आपको डाल दिया है, सो यू कैन हैव अ लुक। यार ये क्या हो रहा है इस बार? कॉल विल बी रिकॉर्डेड। पता नहीं आज मेरे सिस्टम को भी सर्दी लग गई है। ओके, प्लीज कंफर्म इफ यू कैन सी माय स्क्रीन। ओके, लास्ट व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू वाज नोपैड, इन्वेस्टेड कैपिटल, कैपिटल हम लोग यहाँ सब पूरा कवर कर चुके हैं। Capex to depreciation. So anytime my capex is much more than my depreciation, that usually means I am doing some growth capex. And when this capex to depreciation is close to 100% or maybe 120, 130%, that could be my maintenance capex. Because last what we discussed was, as inflation is going up, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपको अपने एसेट को उसी कंडीशन में रनिंग रखने के लिए जितना अमाउंट आपका डेप्रिशिएट हो रहा है एज पर बुक डेप्रिशिएशन, so on a very crude metrics, you have to spend maybe 10-20% more than your that to keep the machine running in free flow and get your units produced, so you be in that same business model and selling the same amount of units as earlier. So uske liye you have to take care of your machines. So this is capex to depreciation. Now in this line in PI industries, this is far north of 100-200%. So that means what we found out over here was, this company is heavy on this capital. That means this is a not an asset light business. And to see that, we can get a judgment over here. Last 3-4 years, my capital from 2000 crores invested in the business went up to 5670 crores, and the sales from 880 crores in March 2012 going up to 4500 crores and 4900 crores in the last 4 quarters. The company had to spend 2765 crores to increase the plant and machinery, the fixed assets, to generate these many amount of sales and numbers. So I generated this cumulative PAT. We discussed this, why the cumulative operating cash flow is more or less than the cumulative PAT. एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी। मतलब शुद्ध भाषा में बोलूं तो इतना मैंने प्रॉफिट कमाया 10 साल में, इतना मुझे कैश मिला मेरे ऑपरेशन से। ठीक है, ये कैश आपको प्रॉफिट से ज्यादा भी हो सकता है, नंबर्स में कम भी हो सकता है।
अगर तो ये ज्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन हमारा प्रॉफिट लॉस में माइनस होता है, लेकिन वो हमारा कैश फ्लो में ऐड होता है, दैट इज वन थिंग। और अगर ये काफी लेस है इस नंबर से, उसका मतलब ये हो गया कि मैं अपना इन्वेंट्री और डेटर्स, अपना वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। या तो मुझे पैसा लेट मिल रहा है मेरे बायर से, या ऐसा हो सकता है कि मैंने माल तैयार करके अपने गोदाम में रखा हुआ है जो बिक नहीं रहा। बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, कोई इसमें वो कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। देन व्हाट वी डिस्कस्ड वाज दिस वर्किंग कैपिटल। अभी ये वर्किंग कैपिटल लाइन जो है यहाँ पर गलत है डेटा, क्योंकि ये पिक्चर शीट लाइन नंबर B85 से उठा रहा है। नाउ दिस इज पिक्चर शीट लाइन नंबर B85। गलत क्यों है डेटा? क्योंकि ये जो वर्किंग कैपिटल इज व्हाट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आई होप इट इज वेरी सिंपल, आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए समझने में व्हाट इज करंट एसेट एंड व्हाट इज करंट लायबिलिटी। सो अब ये जो करंट लायबिलिटी की ये ट्रेड पेएबल्स है, ये अदर, अगर जिनको नहीं पता मैं सिर्फ रिपीट कर देता हूँ, नथिंग स्पेशल इन इट। ये जो अदर लायबिलिटीज की लाइन है, इसमें ये ट्रेड पेएबल्स वाला है, ये आपका करंट लायबिलिटी हो गया, जो आपको एक टर्म के अंदर पैसा चुकाना है। नाउ गेटिंग टू द वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन, मुझे 10 साल का ये करंट लायबिलिटी का डेटा, 10 साल का ये करंट लायबिलिटी का डेटा यहां से मैन्युअली कॉपी करना पड़ेगा। एंड सिंस ये सितंबर का डेटा आ गया है, अगर मैं Q3 और Q4 का भी डेटा लूंगा तो सितंबर का डेटा मेरे पास नहीं होगा, तब तो साल ही खत्म हो जाएगा। सो आई विल कॉपी दिस एंड गो टू द एक्सेल एंड पेस्ट दिस ओवर हियर। मैंने ये सितंबर का कॉलम अलग से निकाल के रखा हुआ है कि इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड इट इज रिटन ओवर हियर, कॉपी दिस रो। व्हेन आई कॉपी दिस रो, आई कम ओवर हियर, दिस वर्किंग कैपिटल नंबर्स विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट फॉर द सेम। ठीक है। Now another problem which I get to see कि this business is always a working capital heavy business। अगर मेरे रेवेन्यू का 25-30% मेरा वर्किंग कैपिटल में चला गया, तो मेरे पास तो 50-60% पैसा ही बचा काम करने के लिए, क्योंकि बाकी पैसा तो मेरे डेटर में या इन्वेंट्री में या उस वर्किंग कैपिटल में फंसा हुआ है। अब आप देखोगे कि पिछले साल में 29% से ये नंबर जंप होकर सीधा 56 पे आ गया है। अब कोरोना की वजह से उधारी देनी पड़ी, या माल नहीं बिका, या जो भी सारी चीजें, वो हम जाके कैश फ्लो के अंदर देख सकते हैं कि क्या हुआ है कंपनी के अंदर। और यहाँ पर हमारे को दिखता है कि मेरा माल नहीं बिक रहा, क्योंकि मेरे माल में 250 करोड़ रुपए का मेरा माल अभी भी मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है। 65 करोड़ रुपीज मेरे को अपने बायर से लेना है। तो ये दोनों नंबर जब मैं प्लस करूंगा, और 220 करोड़ रुपए मुझे चुकाना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि बिजनेस स्ट्रेस में कि जिसको पैसा चुकाना है चुका नहीं पा रहा, जिससे लेना है ले नहीं पा रहा, माल उसका बिक नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि बोरिंग्स नहीं है यहाँ पर। अगर ये 5,000 की इक्विटी के सामने 5,000 या 10,000 की बोरिंग्स होती और फिर ये सिनेरियो होता, तो प्रॉब्लम हो सकती थी। बेसिकली यहाँ इसने किया क्या है, यहाँ पर इसने कुछ इन्वेस्टमेंट्स परचेज करके रखी हैं, क्योंकि इसके पास पैसा पड़ा है। और हो सकता है कि कुछ बिजनेस कमिटमेंट्स हो कि मैं अपने बायर, जो मेरा क्रेडिटर है, उसको पैसा मैं आराम से दूंगा, कैसे मेरा कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, राइट। एंड दीज इन्वेंट्रीज कुड बी आइदर पाइल्ड अप और आइदर मैनेजमेंट्स फोकस टू स्टॉक द इन्वेंट्री फॉर फ्यूचर गेन्स। Once you read the business, understand the business, you will get to this. And why I say the business is not in stress? एक तो यहाँ कर्जा नहीं है compared to the size of the balance sheet, and he is regularly putting some money in investments, right? Why I say the business is asset heavy? See what he is doing. From 800 crores of asset in the last 4 years, he is up to 2,100 crores of asset. डबल से भी ज्यादा एसेट हो गए। लेकिन क्या मेरी सेल्स डबल हुई है? अप्रोक्सीमेटली डबल हुई है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट्स। और एसेट्स हो सकता है पूरे चले गए हों, नहीं चले हों, क्या है नहीं, क्या चीजें हमको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने लास्ट इसको किया था। दिस इज माय वर्किंग कैपिटल। जितना पैसा मेरे वर्किंग कैपिटल से रिलीज होगा, उतना मैं अपना डेब्ट या चीजें चुका पाऊंगा। बट इस इंडस्ट्री में 25-30% रेवेन्यू का वर्किंग कैपिटल कंटिन्यूसली लगा ही हुआ है। तो ये धंधा मेरा फिक्स एसेट हैवी है, वर्किंग कैपिटल एसेट हैवी है, तो फिर ये धंधा सर्वाइव क्यों कर पा रहा है और इसकी इतनी वैल्यू क्यों है? बिकॉज ही इज गॉट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल।
And what do I mean by economies of scale? Because operating leverage is playing in his favor. अगर ये छोटा धंधा होता जिसके सेल्स एंड प्रॉफिट्स कम होते तो ये ऐसे डायनेमिक्स को लेके शायद ही सिस्टम कर पाता. Going ahead, now this is my average trend of 5 years of my EPS. Forget this first number. ये number most probably आपका गलत ही आएगा, because when my average trend of the last 5 years, I will go and look at one or two numbers. 40 और 45% से मेरा जो EPS है ग्रो किया है. दिस इज सिंपल ग्रोथ, दिस इज नॉट कैगर ग्रोथ इन द लास्ट 5 years. ठीक है, आई होप क्लियर टिल हियर एवरीबडी. If you confirm, then I move ahead, because now I'm coming to the most important. Yes, sir. Clear. So this is my return on assets. Now return on assets are two parts over here. Since ये मेरा manufacturing business है, so I am taking my return on my net assets. The formula over here is PBT by PAT divided by average net fixed assets. If it is below 10%, it is bad. If it is above 25%, it is good. The term over here is ROA. ये जितना नंबर ज्यादा होगा मेरा रिटर्न ऑन एसेट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, द मोर द बिजनेस इज एसेट लाइट. और जितना कम खर्चा करना पड़ेगा मुझे एसेट के अंदर, उतना मेरा इक्विटी और उतना मेरा लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट है हल्का रहेगा. Now I can calculate my return metrics from my liability side, also from my asset side. It's one and the same thing. So this number, higher the better in manufacturing. Now when you go and look, pull out data for a bank के अंदर क्या होगा कि बैंक इज अ लेंडिंग फ्रेंचाइज. उसका लायबिलिटी साइड पे से ही उसकी वैल्यू बनेगी, जितना वो लैंड करेगा एंड वॉट एवर रिटर्न इट ही इज एबल टू अर्न ऑन हिज lending, that is the liability franchise. I have written a line over here, ROA banks. So in a manufacturing business, don't look at this line. There is no use to look at this line. If I am studying a bank, let's say HDFC Bank, simple. I go and export the sheet, and this is my HDFC Bank. See this number. Now I will not look at this number because these are for manufacturing businesses. For banks, I will look at this number. And since the last 3-4 years, from 2018, the return on assets for HDFC Bank from 1.68, 1.7, 1.7, 1.7 is increasing, which is very good. Okay, so don't blindly follow this. Don't blindly follow this. See what business are you referring to. और ये जो है मेरा यहाँ पर, ये मेरा इसका यहाँ पे एवरेज आ गया. This is this box has to come down by one line. This is this one. ठीक है. Now next is your return on equity. Now you all guys are financially experts, so have read numbers. राजू भाई आप मत बोलना, कोटा मीट गाइस आप मत बोलना. Anybody tell me what is return on equity? किरण सर आप ही मत बोलना, because you very well know what is this. Anybody else tell me what is return on equity and how do we use it? जितने भी मेंबर्स हैं चैट में, आई कैन नॉट सी. कोई बोलना चाहेगा? Sir, how much sale is happening based on per equity basis, per share? नहीं सर, ऐसा नहीं होता. टोटल नेटवर्थ में अपने कितना कमा रहे हैं, कितना प्रॉफिट? यस, टोटल नेटवर्थ में हम कितना कमा रहे हैं वो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया. नेटवर्थ का मतलब हो गया आपका, ये बैंक आ गया, नेटवर्थ का मतलब हो गया आपका ये दोनों लाइन, इन दोनों का आप टोटल कर लो. इसके ऊपर आपने कितना पैसा कमाया वो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया. मतलब कितना मालिक ने कितना पैसा लगा रखा है धंधे में. शेयर होल्डर भी मालिक होता है. 5,721 करोड़ लगा रखा है, प्लस 15 करोड़ की इक्विटी है. इन दोनों नंबर को प्लस करो, ये तो आपका हो गया डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में आपका आएगा प्रॉफिट, और यहाँ पर ये होगा, ये ध्यान दीजिए यहाँ लिखा है पोस्ट टैक्स. तो इसका मतलब ये है
कि मुझे ये जो प्रॉफिट उठाना है वो उठाना है ये वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटू 100 करूंगा तो मेरा ये नंबर निकल के आएगा। सर बोरिंग को क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा है इसमें? सर The वो total अभी हम network को। सर अभी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर रहे हैं। हाँ सर, बट आपने बोला कि इन टोटल नेटवर्क डिवाइड बाय द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्क, तो नेटवर्क बोरिंग अमाउंट भी तो आएगा ना? नहीं, बोरिंग इज नॉट योर नेटवर्क, बोरिंग इज आवर लायबिलिटी विच वी हैव टू पे। ओके। क्या होता है कि देखो कंपनी भी टैक्स की नजर में एक इंसान है, ठीक है। कंपनी ने बैंक से कर्जा ले रखा है, ये कर्जा है, ये तो उसको देना है। लेकिन कंपनी जो फिक्टिशियस इंसान है, ये पैसा मालिक का पैसा है, शेयर होल्डर का पैसा है। अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो ये पैसा शेयर होल्डर को वापस करना पड़ेगा। ये कंपनी का पैसा नहीं है, ये मालिक का पैसा है। तो कंपनी को तो ये पैसा चुकाना है ना, एज पर अंडरस्टैंडिंग। अब क्या हुआ है कि ये पैसा प्लस ये पैसा लेके, ये 3 आइटम लेके हमने इतने एसेट बना लिए, या इतना हमारा वर्किंग कैपिटल चल गया, या सारी चीजें चल गई। इसीलिए आपका ये लायबिलिटी का फिगर और एसेट का फिगर मैच करेगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब वो क्या हो गया कि मालिक के पैसे में मुझे कितना पैसा कमाने को मिल रहा है, इन दोनों कॉलम का टोटल, इन दोनों रो का टोटल, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो, 2017 से ये नंबर कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है, और पहले बहुत अच्छा था, 27%, 30%, 30%, 30%, फिर 32 चला गया। ये अचानक गिरता जा रहा है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मेरी कमाई मेरे इन्वेस्टेड पैसे के ऊपर दिन बर दिन कम होती जा रही है, साल दर साल, ऑन अ परसेंटेज बेसिस। सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाई दिस इज हैपनिंग? उसका नेटवर्क जितना बढ़ रहा है सर, उसका प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ रहा है उसके बाद में। हाँ, इसका मतलब ये है कि मेरा ये पैसा जो धंधे में लगा हुआ है, ये वाली लाइन का टोटल, ऊपर वाली लाइन का टोटल, उस स्पीड से मेरा ये प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। यानी कि एक साइज आने के बाद मुझे पैसा कमाने के लिए मुझे और पैसा धंधे में लगाना पड़ रहा है। अगर मैं मानो मैंने 400 करोड़ रुपए कमाया, ये 400 करोड़ रुपए मैंने धंधे में डाल दिया, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैंने डिविडेंड हमारे शेयर होल्डर को कम दिया, ठीक है। 400 करोड़ का जो मेरा प्रॉफिट था वो ये था, 410 करोड़ का मेरा प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट। इस 400 करोड़ में से मैंने केवल 55 करोड़ रुपया शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, यानी कि 410 माइनस 55 इज इक्वल टू कितना हुआ? 410 माइनस 55 मोटा मोटा 350 करोड़। 350 करोड़ मैंने वापस धंधे में लगा दिया, ठीक है। ये 355 करोड़ मैंने वापस धंधे में लगा दिया। अब समझने की बात ये है, आपके पास कैलकुलेटर है? सबके पास है कि नहीं? हाँ सर, लैपटॉप में है ऑलरेडी। अगर मेरा कैपिटल इंप्लॉयड होता है, कितना पैसा मैंने धंधे में लगा रखा है कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है। अरे यार ये फोन खा गया। और मेरे पास धंधे में आज की तारीख में पैसा लगा हुआ था 2334 करोड़। इस केस में मैंने डेब्ट को ऐड किया है, ठीक है। और अगले साल मैंने 355 करोड़ तो धंधे से मेरे को कमाई आ गई डिविडेंड देने के बाद। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा डेब्ट से पैसा आ गया, लगभग 500 करोड़। तो 520 करोड़ और 355 करोड़ कितना हुआ? सिंपल जल्दी जल्दी बोलिए, कितना हुआ? 875 करोड़ हुआ, ठीक है। तो एक कुछ करते हैं, चल जाए भाई।
धंधे के अंदर 875 करोड़ और लग गया, लेकिन धंधे की कमाई तो बढ़ी ही नहीं। 410 करोड़ से कमाई कितनी गई? 456 करोड़। सिंपल देख कर लो, 3137 माइनस 2334 कितना हुआ? कैलकुलेट कीजिए। 3137, हाँ 800 करोड़। कितना? 800 करोड़ होगा सर। 800 करोड़ हो गया। 800 करोड़ लगा के मेरे को कमाई मिली सिर्फ 46 करोड़, राइट? तो अगर मैं 46 को 800 से डिवाइड करूं तो मेरा कितना परसेंट आया? मोटा मोटा 5%, 5.7%। ठीक है। बैंक में एफडी कराने में कितना पैसा मिलता है आफ्टर टैक्स, प्री टैक्स? कितना पैसा मिलता है? अभी तो 5% मिलते हैं, लेकिन जिस ईयर का हम कैलकुलेट कर रहे हैं वहां तो 6%, 6.5% मिलते थे। तो सर मुझे एक बात बताओ ना, अगर मैं 5.75% अपने कैपिटल पे कमा रहा हूं एक साल में, तो इससे अच्छा मैं बैंक में एफडी करा लेता ना। मैं अपना इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, ये धंधा ही क्यों कर रहा हूँ? और फिर भी मार्केट जो है, अगर आप प्राइस देखें या भाव देखें, मार्केट इस कंपनी को 14,240 करोड़ से 16,158 करोड़ ले जाती है, जबकि जो मेरी कमाई है उस साल में वो केवल 5.75% है पोस्ट टैक्स। So it is a good thing or it is a bad thing or it is irrational behavior of the market. 2000 करोड़ का मतलब हो गया 2019 से 2020। If I see the stock price 2000, ये रहा स्टॉक प्राइस 2019 में शेयर मेरा 1030 रुपए का था, 2020 में मेरा शेयर लगभग 1200 रुपए का हो गया। तो ये 170-200 रुपए मेरी शेयर की वैल्यू बढ़ गई, पर मैंने इतना भी पैसा नहीं कमाया जितना मुझे बैंक की एफडी देती है। तो व्हाट इज गुड? हम जो पढ़ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही है या मार्केट जो वैल्यूएशन उसको देना चाह रहा है वो सही है? कोई तो बताओ सर। कैपेक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना सर। वो तो मैंने तो जोड़ लिया ना डिनोमिनेटर में। मैंने तो ये पूरा पैसा जोड़ लिया ना डिनोमिनेटर में। वो तो सारा पैसा आ गया ना इधर। सर मे बी फ्यूचर में कुछ सर वो जो सर वो जो इंक्रीमेंटल कैपिटल लगा रहा है बिजनेस के अंदर, वो उसका रिजल्ट आने में तो हो सकता है सेम ईयर नहीं आए, उसके बाद वाले साल में आए। हाँ, जो इंक्रीमेंटल कैपिटल में लगाया है जरूरी थोड़ी कि वो वही स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर जो अर्निंग्स है ये मेरे पिछले कैपिटल के ऊपर है। मेरा जो यहाँ पर अर्निंग्स थी, आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मेरे पिछले कैपिटल के ऊपर है। और ये जो मैंने कैपिटल लगाया है यहाँ पर, इसकी अर्निंग तो मुझे आगे अगले साल में आई। अब देखो कितना नंबर हो गया आपका, 738 माइनस 456, तो कितना प्रॉफिट बढ़ा आपका? 280 करोड़। 280। और डिनोमिनेटर में आपका कितना कैपिटल बढ़ गया अब? 2500 करोड़। 2500 करोड़। तो 2500 करोड़ 280 करोड़ डिवाइड बाय 2500 करोड़, 11% सर। हाँ, और पहले जो मेरी एफिशिएंसी 5.7% थी, अब वो सीधा 11% चलेगी, राइट? आपको ये कैलकुलेशन साल दर साल मैन्युअली नहीं करनी है, आपको ये कैलकुलेशन आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी गाइड करेगी। और एक चीज आप अपनी नोटबुक में या जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं लिख लीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी इज द बेस्ट मेट्रिक टू गेट सम सेंस अबाउट द मैनेजमेंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है टू फच द नंबर्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो इफ अगर मुझे मैनेजमेंट के बारे में समझना है, मैनेजमेंट के बारे में सीखना है, वो आदमी जो धंधा चला रहा है वो क्या सोच रहा है उसके बारे में जानना है, सो आई नीड टू फॉलो रिटर्न ऑन इक्विटी।
और एक बार जब आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सीखोगे, आप रिटर्न ऑन इक्विटी को भूल जाओगे, क्योंकि आप इसको ध्यान नहीं दोगे, और ये सबके साथ होता है। और यहां जो मैं देख पा रहा हूं, पिछले 5 साल में मेरी रिटर्न ऑन इक्विटी गिरती जा रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो रहा है कि मेरा जो पेट है, मेरा पेट बहुत मोटा हो गया है, ये मेरा पेट मोटा हो गया, इसी वजह से मैं ज्यादा तेजी से भाग नहीं पा रहा हूं। लेकिन जब मेरा पेट छोटा था, जब मैं छोटा बच्चा था, मैं स्पीड से भागता था। ठीक है, अब वो क्या नंबर है, क्या स्पीड है, वो एक उसको ग्रोथ बोलते हैं, और वो नंबर को हमारे को इंडस्ट्री के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से उसको समझना है कि क्या मेरा एक नंबर है जिससे एटलीस्ट मैं उससे ज्यादा तो स्पीड से भाग पाऊं। अगर मैं उससे नीचे ही रह गया, उतनी स्पीड से भी मैं अपना वो 400 मीटर्स का राउंड कंप्लीट नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे धंधे में ग्रोथ नहीं है जो मुझे चाहिए, और ऐसे धंधे की वैल्यू, मार्केट वैल्यू उसको नहीं देता है। मार्केट उसको तभी वैल्यू देगा जब आपके पास हो सकता है 1000 करोड़ का एसेट पड़ा हो और वो धंधा आपको 200 करोड़ में मिल रहा हो। ऐसी चीजों को बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू बाइज। एंड जो धंधा स्पीड से चल पाता है उसको बोलते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अगर ये बिजनेस 20-22% के हिसाब से जो बढ़ रहा है, जो इसकी ग्रोथ है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और ये मैट्रिक्स, ये 32, 20, 19, 18, 18, 14, ये अगर उल्टे होते, यानी कि यहाँ पे 14 होता, यहाँ पे 18 होता, फिर 18 होता, फिर 19 होता, ये 20 होता, तो आज की तारीख में ये जो बिजनेस आपको मार्केट कैप, ये जो बिजनेस आपको कुछ 44,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रहा है, ये बिजनेस आपको 4 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे भी नहीं मिलता, यानी कि इससे भी 10 गुना ऊपर। स्टॉक प्राइस मुझे पता नहीं क्या है यार, स्टॉक प्राइस अगर इसका देखो तो स्टॉक प्राइस कुछ, आई थिंक देखना पड़ेगा मुझे स्टॉक प्राइस, कंपनी का स्टॉक प्राइस 3,000 रुपए है। ये आपको 30,000 रुपए शेयर भी नहीं मिलता। केवल इसमें सब कुछ सेम होता है, जो भी धंधे के रिपोर्टेड नंबर जो भी बिजनेस कर रहा है सब कुछ सेम होता है, और ये जो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 नंबर, ये उल्टे होते हैं बस। ये 30,000 में भी स्टॉक नहीं मिलता आपको, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ग्रोइंग बिजनेस विद ग्रोइंग रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, यानी कि सूतली बम। फिर वहां आपको चार्ट नहीं देखना है, वहां आपको ब्रेकआउट नहीं देखना है। अगर ऐसे जगह में भी अगर आप चार्ट देख रहे हो और ब्रेकआउट देख रहे हो तो बुरा नहीं मानिएगा, मेरी नजर में हमारे से बड़ा गधा कोई नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। $380 करोड़ का सेल्स, 4,100 करोड़, और यहां पर देखो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, यहां तक 2018 तक, 14 से लेके 18 तक, ये कितने साल हो गए? 14 से 18, हाँ 4 years सर। इंडिया में, इंडिया का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, एनी बिजनेस ट्रेमेंडस ग्रोथ रिकॉर्ड, विद अ ट्रेमेंडस ग्रोथ रिकॉर्ड and high returns on equity is not able to sustain more than 4 to 5 years. तो आज के जमाने में वो कहानी खत्म हो गई कि वॉरेन बफेट कहते थे कि स्टॉक लेके आप सो जाओ एंड बाय एंड होल्ड एंड फॉरगेट। दैट स्टोरी इज एंडेड because the smartest of the smartest people are in the stock market and they are muddling their heads. So if I get such a condition, which we will see how to get to this, and I am able to judge कि यार ये मेरा number would be much above say 15% or 20%, whatever the crude metric which we fit in our minds, and it is going to sustain that. And with this from 46 to 40, मतलब जो भी range है, and my business is growing, मेरा 1,000 करोड़ की सेल मेरी 3,400 करोड़ की सेल हो गई, मेरा 70 करोड़ का प्रॉफिट कुछ 450 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ये 4 साल में अवंती फीड्स फाड़ के चला है। ऐसे इस 4 साल में दुनिया का कोई रेजिस्टेंस इसको रोक नहीं पाया।
2014 से 2018 आप देख सकते हो क्या हुआ। 15 रुपए का शेयर आपका 9,000 रुपए का हो गया। और टेक्निकल एनालिस्ट की भाषा में चले जाओ तो ये भी रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस था, ये भी रिट्रेसमेंट था, ये भी रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस था, दुनिया भर के रेजिस्टेंस थे, पर क्या कोई रेजिस्टेंस काम किया? उसके बाद जब इसका पेट मोटा हो गया, 1093 करोड़ से 3,300 करोड़, उसको 5-4 साल लगे पहुंचने में, 70 करोड़ का मेरा प्रॉफिट 400 करोड़ पहुंच गया। उसके बाद जब ये पेट मोटा हो गया, जब ये मेरे जैसा भारी आदमी हुआ, जब ये भाग नहीं पाता था, उसके बाद देखो क्या हुआ, ना तो सेल बढ़ी ना प्रॉफिट बढ़ा, और ये कहानी खत्म हो गई। अगर हम पीआई इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं, अवंती को छोड़ते हैं, अगर हम पीआई इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं, ये 2200 करोड़ से 4,500 करोड़ बहुत अच्छा नंबर है, कोई खराब नंबर नहीं है। 367 करोड़ से 738 करोड़, यानी कि 4 साल में मेरा सेल भी डबल, प्रॉफिट भी डबल। सिर्फ मेरे ये नंबर अगर उल्टे होते, ये 4 साल के नंबर मेरे उल्टे होते, ये कंपनी आपको 44,000 नहीं 4 लाख करोड़ में भी नहीं मिलती। अब समझने की बात यह है, मेरे को 2 चीजें समझनी है यहां पर, कितनी स्पीड से मुझे अपनी सेल या अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। ये 3-4 चीजें जानने के लिए मेरे पास ये पिछले 10 साल का, 7 साल का, 5 साल का और 3 साल का हिस्टोरिकल डेटा है। ये कंपनी 24% से लेके 26% की रेंज में अपना प्रॉफिट बढ़ा रही, जो कि बहुत अच्छा है। ये कंपनी 20% से लेके 26% की रेंज में अपनी सेल्स बढ़ा रही है। और अगर मैं देखूं 10 साल में ये 20% से सेल बढ़ा रही थी, लेकिन पिछले 3 साल में क्या हुआ, इसमें कैसी आग लग गई तो ये 26% से सेल बढ़ा रही है, राइट। सिमिलरली विद द प्रॉफिट्स, 20-24% का प्रॉफिट ग्रोथ था, पिछले 3 साल में 26% हो गया। तो पिछले 3 साल में कुछ तो ऐसा इस बिजनेस में हुआ है कि जिसमें अचानक से इसमें आग लग गई है। बट अगर मैं थोड़ा सा मसाला डालूं इसके अंदर, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कोई मुझे देख के बता सकता है स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम है? हाँ नहीं, कैपिटल इंटेंसिटी तो है, ये कैपिटल इंटेंसिटी तो आपको नीचे पता चलेगा ना कि मैंने कितना कैपेक्स किया, क्या किया। केवल इस इनके अंदर देख के और यहां से लेके अंदर यहां तक देख के क्या मुझे बता सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है? अभी तक तो हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है कि 20% से मेरा धंधा बढ़ रहा है, और 10 साल हो गए बढ़ते बढ़ते, और पिछले 3 साल में 26% से बढ़ रहा है। ठीक है, एक चीज हमारे को यहां पता चल गई कि मेरी जो एफिशिएंसी है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने ये इतने सारे संसाधन अपनी फैक्ट्री में, अपने धंधे में खड़े कर दिए, जिसको मैं अच्छे से चला नहीं पा रहा हूं। इसको कैसे जज करना है, अभी एक चीज और देखते हैं। लेकिन क्या मैं इतनी सी इंफॉर्मेशन को देख के कुछ बता सकता हूं कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है? आप सब लोग समझदार हो, आप सब लोग फाइनेंस एक्सपर्ट्स हो, कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग एक्सपर्ट्स हैं। मैं 1 मिनट के लिए वेट करता हूं। इसका टीटीएम गिर रहा है सर। हाँ, टीटीएम गिर रहा है। जो मेरी 3 साल में सेल्स 26% से बढ़ रही थी, पिछले 4 क्वार्टर में अचानक वो सेल 7% रह गई। और सिमिलरली विद माय प्रॉफिट, तो पिछले 4 क्वार्टर में कुछ तकलीफ हुई है। क्या वो परमानेंट है, क्या वो टेम्परेरी है? अब ये सवाल पूछना है हमको, हमारे आपको, क्या वो पिछले 4 क्वार्टर में वो जो तकलीफ हुई है, अचानक से ग्रोथ गिर गई है, क्या वो परमानेंट है, क्या वो टेम्परेरी है? और आप लोग जो कोटा मीट में थे, आप लोगों को ये पता है कि 15% हमारा हर्डल रेट होता है फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी, विच इज नॉशनल जीडीपी। 6 से 8% मेरी जीडीपी बढ़ती है, 6 से 8% मेरा इन्फ्लेशन है, and my cost of equity and cost of debt is mota my return on equity should be 15%. Now return on equity is going down day by day and my growth has gone down in the last 4 quarters. मुझे नहीं पता स्टॉक प्राइस में क्या हुआ है, देख लेते हैं। मार्केट ने इसको अभी तक क्या कहते हैं, वैल्यू दिया ही नहीं दिया है। स्टॉक प्राइस आपका धीरे धीरे साइडवेज से नीचे की तरफ आने लग चुका है। आगे
कैसे देखना है कि मैंने बहुत सारे एसेट बना लिए और जिनको मैं हो सकता है नहीं अच्छे से रन कर पा रहा हूँ, मेरा ये जो नेट फिक्स एसेट टर्नओवर है, यानी कि 1 रुपए की एसेट से मुझे कितने रुपए की सेल मिलेगी, ये मेरा नंबर जो है धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगा। जो पहले 3 साढ़े 3 के आसपास था, आज की तारीख में 2.20 रह गया है। और हो सकता है कि अगर 2 क्वार्टर में, आने वाले 2 क्वार्टर में, ये जो 2 क्वार्टर है, ये जो मेरी सेल्स है ये 7% ही रह गई है 2 क्वार्टर में, अगर एक Q3 में या Q4 में भी रह जाती है तो अगले साल जब तक मैं 2022 के नंबर यहाँ डालूंगा और 2012 के नंबर यहाँ से बाहर हो जाएंगे, ये मेरा नंबर और नीचे आ जाएगा। और अगर ये मेरा नंबर और नीचे आ जाएगा तो आप जितने मर्जी लाइन खींच लेना, यहाँ पर स्टॉक प्राइस आपका और नीचे आ जाएगा। सिमिलरली हम लोगों ने वो, ये तो चलो आगे क्या होगा ये तो भगवान को पता या चोर को पता। सिमिलरली ऐसा ही सिनेरियो हमने इसमें देखा था। यहाँ पर ये स्लो हो गया था मामला, यहाँ पर ये मामला स्लो हो गया था। ये 19 के बाद, पर ये तो चलो एसेट लाइट बिजनेस है, इसमें आपको इतना पता नहीं चलेगा, आपको एक एसेट हैवी बिजनेस सीखना पड़ेगा। व्हाट डिड एक्चुअली हैपन? एसेट हैवी बिजनेस, पवन जी कोई एसेट हैवी बिजनेस बताओ जिसमें फिक्स एसेट टर्नओवर गिरा होगा। देखते हैं। मारुति बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, टाटा मोटर, मारुति, कुछ भी होगा ना। सी फ्रॉम 5 from 6 it is started to go down। ठीक है ना। बिजनेसेस तो बहुत भी और भी हैं, से टीवीएस मोटर्स कंपनी 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी नहीं, बड़ी कंपनी। Why I am taking autos? Because autos had a bad time in the recent past. See, from 5.99 goes down to 4.84। इसका मतलब my assets in the business और मेरी सेल फिर भी नहीं बढ़ रही, sales is going down। And is this company has done a capex? अगर इस कंपनी ने कैपेक्स किया है तो कहते हैं ना, वो आग में घी डालने की बात होगी। तो क्या 20-21 में मेरा स्टॉक गिरा है? पिछले 3 साल में देखते हैं। 2000, चलो छोड़ो, यहाँ से देखो 20-21, 2020, ये जो कोरोना का लो था, क्या मेरा ये स्टॉक गिरा है? एक डाउनफॉल, ये 20-30% की ये आई है, एक डाउनफॉल आपको अभी आई है। दिस इज 2021, बट हियर द मार्केट सेज द स्टॉक इज गॉन अप। एक मिनट, छोटा देखो आप, मेरा प्राइस तो बड़ा है 20-21, ये यहाँ मेरा स्टॉक प्राइस तो बड़ा है, 500 रुपए का मेरा स्टॉक प्राइस ऊपर जाके 700 रुपए हो गया है, लेकिन यह मेरी बिजनेस की एफिशिएंसी इज गोइंग डाउन। तो क्या सही है, शेयर का मूवमेंट या मेरे धंधे का मूवमेंट? शेयर का मूवमेंट सर। हाँ, शेयर का मूवमेंट। नहीं सर, मार्केट इज अर्नड यू गिविंग एडवांटेज वैल्यू टू दैट बिजनेस, नीचे आएगा ही। Sir, why the market is giving advantage? Because in my TTM number, my return on equity has again reverted up. जो पिछले 2 टाइम के लिए this was under came down from 24 to 16, and my profit went negative in the last 3 years. My growth went negative. जो ट्रेन रुक गई थी स्टेशन पे आते आते, उसने अचानक से स्पीड पकड़ ली। ठीक है, टीटीएम नंबर, एंड इन द टीटीएम नंबर माय रिटर्न ऑन इक्विटी हैज रिवर्टेड अप। इसी वजह से आई एम गेटिंग दिस। सर टीटीएम रिटर्न ऑन इक्विटी कहां पे दिख रहा है सर, वो दिखाएंगे एक्सेल? ये रहा सर, टीटीएम रिटर्न ऑन इक्विटी ये रहा 21.57, जो कि आपके 16 से और 19 से काफी बड़ा है। और टीटीएम रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ मेरा जो ग्रोथ है, जो 6% रह गया था लास्ट 3 साल में, टीटीएम में बढ़ गया। तो इसका मतलब पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी ने ऐसा कुछ तो किया है जो अचानक गिरती स्लो होती कंपनी अचानक फिर से खड़ी होगी।
सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ सर। अगर ये TTM मतलब जो इज रिवर्सिंग, मतलब 8% से 7 हो गया, 6 हो गया, नाउ इट इज सेइंग 20, तो क्या ये टर्न अराउंड स्टोरी है या? Yes, it is a turnaround story. Yes, sir, you have to match these two numbers. आप अपने मन में एक तराजू को देखो, तराजू के एक तरफ पे ये TTM नंबर है, तराजू के दूसरी तरफ आपका ये TTM नंबर है, ये दोनों। अब जैसे ये माइनस ग्रोथ जाता जाता सीधा प्लस हो गया, और ये आपका माइनस जाता था, इट्स लाइक अ हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक होता है ना, नीचे से यू कर्व होता है, इट्स लाइक अ हॉकी स्टिक। ये ज्यादा प्लस हो गया, सो इट कैन बी अ टर्न अराउंड स्टोरी। नाउ द क्वेश्चन टू आस्क इज, TTM में मेरे पास 2 क्वार्टर के नंबर आ चुके हैं, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर। अगर तीसरा क्वार्टर इस ग्रोथ को सस्टेन करता है, स्टॉक प्राइस आपका ऊपर चला जाएगा। चौथा क्वार्टर इसको सस्टेन करता है, स्टॉक प्राइस आपका और ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर सस्टेन नहीं करता है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सर मार्केट टाइम देगा इतना, मतलब रिपोर्ट्स नंबर आने के बाद? सर यू बी सरप्राइज्ड, मैं जब आपको एक सेशन करूंगा, एंड विच आई एम डिस्कसिंग इन दैट मेन ग्रुप आल्सो, यू विल बी सरप्राइज्ड हमको क्या सिखाया जाता है फ्रॉम डे 1। भाव भगवान 6। क्या ये लाइन आपने पहले सुनी है? सच्ची सच्ची बोलिए, भाव भगवान 6 हर जगह सर। हाँ सर, सुनाओ सर। हाँ सर। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस मूवमेंट आपके फंडामेंटल मूवमेंट और बिजनेस मूवमेंट को पहले आपको एक अंदाजा दे देगा। दूसरी चीज, क्या आपने ये कभी सुना है कि क्वार्टरली रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले ही भाव चलने या गिरने लग जाता है, जिससे कि इन्वेस्टर को पता चल जाता है, एक अंदाजा लग जाता है कि रिजल्ट अच्छे आ रहे कि खराब आ रहे? क्या आपने ये सुना है? और अब मैं आपको बोलूं कि मैं आपको ये दोनों चीजें गलत साबित कर दूं कि भाव भगवान नहीं छे, फंडामेंटल्स आपको प्राइस से भी पहले इंडिकेशन दे देंगे, और उसके बावजूद भी आपको स्टॉक परचेज करने के लिए सफिशिएंट टाइम देंगे, जिसमें पॉइंट नंबर 1, आपको किसी को पूछने की या किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं, आप खुद इस चीज को देख के कर सकते हो। इफ आई कैन प्रूव यू दिस। सर ब्रेन ट्रांसप्लांट करवा दो सर अपना वाला। सर आपने जो रिकॉर्ड, ये जो मैं चीज बता रहा हूँ, ये जो मैं चीज बता रहा हूँ, ये मैंने अभी तक किसी से डिस्कस नहीं करी है, एंड आई विल प्रूव यू टू दिस, बट द लॉजिक इज हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू लुक एट द डेटा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाव भगवान नहीं छे और फंडामेंटल्स विल गाइड यू मच 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 बिफोर, और आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा अपने। देखो क्या होता है कि जब मार्केट गिरता है ना, तो सब लोग कुछ ना कुछ माल लेके बैठे होते हैं। साला जब मार्केट गिरता है ना, पैसे ही नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ या तो जॉब में, बिजनेस में, घर में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं, या हम स्टॉक खरीद के बैठे होते हैं, हमारे जेब में पैसा ही नहीं होता माल खरीदने का, और हम रोते रहते हैं कि यार वो इतना नीचे गिर गया था, अगर काश में और ले लेता। सबके साथ होता है, राइट? मैं आपको बोल रहा हूं, फंडामेंटल्स विल गाइड यू मच 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 बिफोर, एंड वो होने के बावजूद भी यू विल गेट सफिशिएंट टाइम टू बाय एज मच एज द क्वांटिटी यू वांट टू बाय, एंड उसके बाद यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉर्ड सेटअप्स, ब्रेकआउट्स, एंड जो भी चीजें आज तक हमने सीखी है। हाउ डज दिस फील नाउ? एंड इट इज टाइम एंड टेस्टेड, बट दिस इज नॉट फाउंड इन बुक्स, दिस इज नॉट बुकिश नॉलेज, and I will get all this information in front of you, in front of your eyes, in your screen, in one screen, and you will get sufficient time to read, to understand, to decode the numbers also. अभी हम लोग सिर्फ ये numbers, how the Excel is been structured, we're just looking at those numbers. Everything will be done. So keep this in mind. Soon we'll have this session in the main group if the members are ready to learn about it. And once you do this, trust me, आप अपना जो टर्मिनल है ना, टर्मिनल जो भी आप ब्रोकर्स में ऑर्डर डालते हैं, आप अपना टर्मिनल का ऐप अपने मोबाइल से और लैपटॉप से डिलीट कर दोगे, एंड यू विल एग्जिट ऑल द टेलीग्राम ग्रुप्स, बिकॉज आपको सब कुछ ये नॉइज लगने लगेगी।
खैर, लेट्स डोंट नॉट डिविएट फ्रॉम द फोकस. सो ये आपका हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी. क्लियर टिल हियर? और ये इसका एवरेज हो गया. अच्छा, एवरेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. हमको डेटा 10 साल का मिलता है, राइट? प्रॉब्लम मैंने यहाँ क्या क्रिएट कर रखी है, इस नंबर में से ये हमारे पास 9 इयर्स का डेटा, बिकॉज वी टेकन एवरेज ऑफ 2 इयर्स. इसका और इसका मैंने एवरेज लिया, इसलिए 9 इयर्स का नंबर है. तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसमें इन 9 नंबरों में से सबसे अच्छा नंबर ये है, तो क्या मैं गलत बोलूंगा? हाँ कि नहीं? इज दिस द बेस्ट वन आउट इन द लाइन? Yes, sir. Yes, sir. एंड इज दिस द वर्स्ट वन आउट इन द लाइन? सबसे खराब नंबर ये है. Value, sir. Yes, sir. एक समझने की बात यह है कि यार हो सकता है कि इस साल में कुछ खराबी आ गई हो, कोरोना आ गया हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई हो, और इस साल में कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया हो जो वन ऑफ है, जो बार बार नहीं होगा. तो मुझे एवरेज चाहिए, तो क्यों नहीं मैं इस एवरेज के अंदर से ये द बेस्ट नंबर और ये द वर्स्ट नंबर दोनों को हटा दूं, ताकि वो एक नॉर्मल लेवल चीज हो जाए, और स्ट्रेट लाइन हो जाए, उसमें ज्यादा हिचकोले नहीं हो, एंड देन आई गेट टू एन एवरेज. So what we have done over here is, in this average, जो भी सबसे खराब नंबर होगा, जो भी सबसे अच्छा नंबर होगा, दोनों को हटा देगा और बाकी का आपको एवरेज दे देगा. जस्ट टू गेट अ स्मूथ ट्रेंड. हिचकोला नहीं चाहिए, अप डाउन ट्रेडिंग नहीं चाहिए, ब्रेकआउट स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, स्मूथ ट्रेंड. सो माई स्मूथ ट्रेंड गिव मी कि दैट माई रिटर्न ऑन कैपिटल, ये बॉक्स थोड़ा ऊपर है, आई एडजस्ट दिस बॉक्स एंड सेंड इट टू यू अगेन. My return on equity is 24.75% in the last 10 years, removing the best one out and removing the worst one out. ठीक है? Clear till here? Yes, sir. अब कमाल जी ने जो पूछा था कि शेयर होल्डर इक्विटी के साथ साथ मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड में मैं डेप्ट क्यों नहीं ले रहा हूं, तो सर पहली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. हाँ पूछो सर. अभी आपने जो बोला कि हम बेस्ट और वर्स्ट को हटा देंगे एवरेज से, तो कोई ये जरूरी तो नहीं है कि जो बेस्ट हुआ होगा या वर्स्ट हुआ होगा वो कोई मतलब ऐसे इवेंट से हुआ होगा कि जो बाकी ईयर्स में नहीं हो सकता. लाइक फॉर एग्जांपल, जो बेस्ट हुआ होगा, हो सकता है कि the company might have done good maybe because of their capex which happened, something like that. अगर सर बेस्ट हुआ होगा and because of the capex which happened, or because of any one time event which happened, then that should have sustained in the future. That was not sustaining. और वो 10 साल में एक ही बार ऐसा क्यों हुआ? Until now we have not studied the business, so we want to be conservative. अगर ये बेस्ट नंबर में ऐड करूंगा तो मेरा एवरेज आएगा वो ऊपर चला जाएगा, और ये वर्स्ट नंबर में ऐड करूंगा तो मेरी एवरेज नीचे चली जाएगी. तो मुझे तो एक स्मूथ ट्रेंड चाहिए. माई स्मूथ ट्रेंड गिव्स मी 24.75% ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी. द प्रिसाइज नंबर्स डोंट मैटर, द वेरिएशन ऑफ द नंबर्स मैटर. सो इसलिए बेस्ट और वर्स्ट को हटा के क्या हो रहा है, एक एक्सप्लेनेशन है इसमें. ओके सर. नेक्स्ट थिंग जो अभी डिस्कस हुआ था कि इसमें हमने डेप्ट क्यों नहीं ऐड किया, तो ये जो नेक्स्ट है इसमें हम डेप्ट ऐड कर रहे हैं. लेकिन एक चीज और, ये जो कैलकुलेशन आएगी ये आपकी प्री टैक्स आएगी. ये कैलकुलेशन थी, ये आपकी पोस्ट टैक्स थी. और इसमें हम करते थे नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. इसमें हम करेंगे, डिनोमिनेटर में तो आएगा इक्विटी प्लस डेप्ट, न्यूमरेटर में आएगा आपका पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि हमको टैक्स नहीं लेना है इसके अंदर, प्लस इंटरेस्ट जो मैंने अपने लेंडर को दिया. एंड वी गेट टू द सेम नंबर विच इज कॉल्ड एबिट. एंड व्हाई वी कैलकुलेट दिस नंबर? बिकॉज मेरे धंधे की एक्चुअल एफिशिएंसी क्या है. मुझे अच्छी बात है, मेरा सेल नंबर 4,500 करोड़ की मेरी सेल होगी, पर मेरे हाथ में तो धंधा 973 करोड़ ही बना के दे रहा है. So that is my number which gives me this number over here, which is return on capital employed. और अगेन इसका ये मेरा TTM नंबर है जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, और इसके जो एवरेज है which is 29.06. अगेन I have removed the best one out and the worst one out, which is 23%.
to get to a smooth average, which is 29%, which is actually very good. Now one question to everybody. आई थिंक आप लोगों को आता है या समझ में आ गया या आप आगे जाके भी स्टडी करेंगे. Why can return on equity, why should return on equity be lesser than return on capital employed? Or in other words, how can return on capital employed be greater than return on equity when रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के डिनोमिनेटर में मैं डेप्ट कंपोनेंट को ऐड कर रहा हूं. आइडियली मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी मोर देन रिटर्न ऑन इक्विटी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा. these two numbers, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो मेरा काफी बार रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है और मैं डिनोमिनेटर में डेप्ट ऐड कर रहा हूं. ऐसा क्यों? So post tax and pre tax. एक तो वो चीज हो गई. दूसरा कि वो डेट लेके ज्यादा कमा रहा है सर. हाँ, हो सकता है. एक और क्या रीजन है, उसको कैसे समझा जाए? Because of interest components. नहीं, तो इंटरेस्ट कंपोनेंट वी हैव एडेड ओवर हियर ना, एंड वी हैव टेकन अ प्री टैक्स नंबर. Sir, I think on the debt, the company has to pay the interest, but I think numerator includes interest in this. Sir, just to understand, now there is no logic behind it. Return on equity is the total equity in the business, which this ROE number gives you the performance of the management. With the debt, that performance gets distorted. Now, there will always be some cash and some investments in the business, which should be ideally deducted from your capital employed, because ये म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, राइट? सो व्हेन यू डिडक्ट दिस आरओसी, मतलब मोटी मोटी समझने की बात है, द प्रमोटर इज एबल टू डिप्लॉय some percentage, maybe 80-90%, some percentage of the capital at a better rate of return. जैसे अभी पवन जी ने बोला कि वो डेप्ट लेके ज्यादा पैसा कमाता है, because cost of debt is cheaper than cost of equity. Cost of equity माने 2 रुपए सैकड़े का ब्याज, 100 ब्याज. Cost of debt माने 8%, 10% पे, जिसपे बैंक हमारे को ब्याज का पैसा देता है. कर्जा लेने का डेप्ट का पैसा हमारे इक्विटी के पैसे के उससे सस्ता होता है. And with this amount of money which he has put into investments, he is rotating that little amount of money जिसके अंदर से हमने ये कैपिटल माइनस कर दिया at a higher rate of gain. क्यों? क्योंकि उस पैसे को लाने का इसका कॉस्ट रिटर्न ऑन डेब्ट का कम है रिटर्न ऑन इक्विटी से. लेकिन ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये मेरा पोस्ट टैक्स नंबर है, इसमें मेरी अदर इनकम सब चीज आ जाएगी. ये क्या हो गया, धंधे में मेरे पास जितना पैसा है उसके सारे की यूसेज. तो अगर ये नंबर मेरा ये नंबर से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रमोटर आपका कर्जे के पैसे को अच्छे से यूज कर रहा है. वो जानता है कितना कर्जा लेना है और कैसे उसको यूज करना है. बहुत कम चांस है कि वो कर्जे में धोखा खाएगा, बहुत कम चांस है. खा भी सकता है, मार्केट इज डायनामिक, किसी को नहीं पता होता. ठीक है. So these are 2-3 reasons why your cost of capital can be more than your cost of equity, और आपको बहुत सारी जगह ऐसा मिलने वाला है. Now one very most important question, क्या ये नंबर ज्यादा या ये नंबर ज्यादा, कौन सा ज्यादा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए? क्या इन दोनों नंबर्स में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए या ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए? क्या मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी को देखना चाहिए या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखना चाहिए? क्या मुझे दोनों को ही नहीं देखना चाहिए? कौन सा आंसर सही है? So return on equity should be more than ROC, और देखना तो दोनों को चाहिए. Okay, anybody else? सर आपने जैसे पहले बताया था, रिटर्न ऑन इक्विटी गिव्स अ बेटर इंडिकेशन ऑफ हाउ द प्रमोटर इज डूइंग द बिजनेस. Yes. So
And return on capital will give you indication how the promoter is using the debt to generate profits in his business. Yes. So which number to see? एक या दोनों, एंड दोनों में कितना डिफरेंस होना चाहिए, या डिफरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और उसको एक ही साल का नंबर देखना है या ओवर द इयर्स देखना है? 15 should be the minimum, as you said, कि अपना inflation and all. So ROE and ROC also 15 should be better, I feel. But ROCE को जब देखेंगे तो we have to see in context कि जैसे आपने capex वाले वेबिनार में बताया था कि when it's turning around, that is like a hockey stick pattern, right? तो दोनों important है. I think uses different है, but when we are taking a call, we have to see in both aspects. दोनों में कितना डिफरेंस होना चाहिए या डिफरेंस नहीं होना चाहिए? व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग? अगर सर ROE मेंटेन कर रहा है कंपनी, अगर मेरे हिसाब से अगर जज किया जाए, अगर ROE ऑन एन एवरेज 15 पे मेंटेन है और ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, एंड अगर उसने केपेक्स किया हुआ है एंड उसके टाइम पे अगर ROC लेट से अगर 12 तक आ जाती है या इवन 10 तक आ जाती है, सर्टेन केसेस, अगर केस बाय केस, आई शुड बी ओके सीइंग दैट कि प्रीवियसली उसका कितना ROC गया था और अभी कितना है, एंड विद दिस केपेक्स कैन दैट कंपनी हैज ए way to generate extra income. Utilization उसका बढ़ सकता है क्या? That will help us to get a net profit again, and once denominator goes up, every ROC will start picking up. One caveat, मैंने कभी नहीं बोला कि 15% ROE और ROC को आप एक मैट्रिक बना लो. अब वो पॉइंट ए और पॉइंट बी का वीडियो सोचो यार, ऐसा भी तो हो सकता है मेरी ROE या ROC आज 5% 7% है, लेकिन 2 साल के बाद जाके 20% हो जाए. लेकिन अगर मैं कोई स्क्रीनर बनाऊंगा, कोई फिल्टर बनाऊंगा जिसमें 15% ROE लिखूंगा, तो मैं ऐसे अपॉर्चुनिटीज को मिस भी कर सकता हूं. और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 5-7% ROE का जो मैं धंधा लेना चाह रहा हूँ या ROC का धंधा लेना चाह रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये ROC 20% हो जाएगी, लेकिन वो कभी हो ही ना. तो ऐसा ओवर द इयर्स सर कंपेयर करना होगा ना ग्रोथ. हाँ, एक पॉइंट वो हो गया. ऐसा कौन सा मैट्रिक है या ऐसा कौन सा जजमेंट है जो मुझे ये बता सकता है कि यार ये 5-7% ROE which is not good at all, which is value destruction, can come to above 15-18-20% most likely, and most likely which ones could not be able to come above that. So I need to understand this. No, ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना लिया और उसके नीचे में जाऊंगा और फॉर्मूला के ऊपर में जाऊंगा, तो फॉर्मूला में जो आंसर आएगा वो चलूंगा. मार्केट्स आर नॉट फॉर्मूलास, मार्केट्स आर डायनामिक. So think about it. One way of Gurdeep sir, is it looking at कि कंपनी का पास्ट एसेट टर्नओवर रेशियो कैसा है? अगेन आई एम थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस. And if they have done capex, and if I understand another point is yes, there is a runway and there is a sector dynamics या future demand आ रही है जो कि उसके मैनेजमेंट डिस्कशन या फिर इंडस्ट्री रिपोर्ट से हमें मिल जाएगा. Then I can rely on that कि yes, this company has potential to turn around and use the asset turnaround इसका बढ़ेगा, and that will help us reach to that ROC basically. Right. Yes, sir, you are right. So, in simple terms, can I say this? If there is a catalyst in the equation, and if I can identify, sir, mute कर लीजिए, मेरे को echo आ रहा है. And if I can understand that catalyst, they can probably come to a judgment that this ROE might or ROC might improve in the next 2, 3, 4 years. And if there is no catalyst in the business, then rather I should avoid the business. And आपने जो बात करी, that could be one of the catalysts. So are there more catalysts to it? ऐसा तो नहीं है कि मुझे बार बार सिर्फ कैपेक्स ही मिलेगा. कैपेक्स का एक वेबिनार हुआ है, सेशन हुआ, तो सब लोगों के दिमाग में कैपेक्स चढ़ गया है. ऐसा तो नहीं कि मुझे सिर्फ कैपेक्स मिलेगा. कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं कैपेक्स हो ही ना, कुछ और हो जो कि एक कैटलिस्ट के रूप में मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में मुझे समझ आए, जिससे मुझे ये जजमेंट मिले कि यार क्या मेरे बिजनेस की एफिशिएंसी विच इज ROE और ROC और रिटर्न मैट्रिक्स और एफिशिएंसी रेशियोज जो हैं वो आगे चल के अच्छे हो जाए. डीमर्जर सर? नहीं सर, इट इज नॉट डीमर्जर. Material cost is also
अगर कुछ ऐसा हो कि टेम्पररली रॉ मटेरियल कॉस्ट सर, अगर मतलब इन अभी बढ़ गया हो कोई सडन वजह से। आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे सर, मैं रॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी में आ चुका हूँ, मैं P&L में ऊपर इस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ऐसा क्या हो सकता है जिससे मुझे ये पता चले कि ये नंबर्स आगे जाके बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं? देखो ये रेशियो क्या है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, या तो न्यूमरेटर बढ़ा दो या डिनोमिनेटर घटा दो। न्यूमरेटर बढ़ाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, डिनोमिनेटर घटाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। कंपनी का कोई प्राइस हाइक लेगा तो ऊपर बाईबैक सर, हो सकता है बायबैक होगा तो आपको न्यूमरेटर घट जाएगा। नहीं 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 नहीं, न्यूमरेटर कुछ नहीं होगा आपके बायबैक से, आपकी बैलेंस शीट न्यूमरेटर में घटेगा ना सर? नहीं नहीं, आपका कैश घटेगा बैलेंस शीट में से और डिनोमिनेटर घटेगा, न्यूमरेटर तो वही रहेगा, न्यूमरेटर प्रॉफिट है, बायबैक लेने से प्रॉफिट को क्या फर्क पड़ने वाला है? न्यूमरेटर की बात कर रहा सर, कि मतलब नंबर ऑफ डिनोमिनेटर घटेगा। लगा रहे हैं। हाँ डिनोमिनेटर घटेगा, राइट। बहुत सारे तरीके हैं। एक BSE का अनाउंसमेंट है, मैं आपको ग्रुप में डालता हूं, और कहाँ गया, और आप उसको पढ़ो। और मजे की बात ये है कि वो जो स्टॉक था ना आज वो 20% लोअर सर्किट पर था। मैं ये नो बाय नो मीन्स आई एम टेलिंग यू टू बाय और सेल दिस कंपनी, बाइंग और सेलिंग हमारा फोकस नहीं है अभी। आप इसको पढ़ो और आप देखो आपको क्या समझ में आता है इसमें। मैंने आपको अपने वो इसी में डाला, चैट वाले बैच उसमें जो ग्रुप है। बात कर रहे हैं क्या सर? नहीं मैं उसको मैं फ्लोर में अपलोड कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ अपलोड हो रहा है। हाँ देखो ग्रुप में आपको कुछ एक BSE का एक अनाउंसमेंट आया होगा, इसमें 3-4 पॉइंट है, और कंपनी कह रही है कि मेरे पास 1000 करोड़ का कर्जा था और मैंने इन पॉइंटों से ROE है ROC पे क्या फर्क पड़ सकता है, जस्ट ट्राई एंड गेट सम सेंस आउट ऑफ इट। सर ये हिंदुजा ग्रुप वाला जो पेपर आपने भेजा है BSE हाँ 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 ओके। डिविडेंड देगा तो ROC तो बढ़ेगा सर। नहीं वो तो बढ़ेगा, वो तो सही है। विल क्लोज ओवर हियर एंड विल कनेक्ट फॉर डिस्कसिंग दिस ROE और ROC इन द नेक्स्ट 30 minutes or so on an audio call. Try and get some sense what is going to happen and why the stock is today down at 20% lower circuit. ऐसा क्या रीजन है जो इस अनाउंसमेंट के अंदर है, आप डिस्कस कीजिए। विल कनेक्ट बैक इन 15-20 minutes टू डिस्कस दिस अनाउंसमेंट। आप लोग इसको एक समझने की कोशिश कीजिए। सर इक्विटी लोग बढ़ा दे रहे ना सर, यहाँ पे 1 पे 1 दे रहे करके, इसलिए 1 पे 1 देने से इक्विटी नहीं बढ़ेगी सर, वो या तो बोनस दे रहा है या वो अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा रहा है। ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने से आपका इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल नहीं बढ़ता, वो केवल MCA से परमिशन ले रहा है कि मैं आगे चल के अपना प्रेफरेंशियल शेयर या डिबेंचर या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का ऑथराइज कैपिटल बढ़ा रहा हूं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। चलो आप डिस्कस करिए, तो आपने पढ़ लिया तो। Point number 2, what he says is, I am selling my one business to some other company in Netherlands में कहा, and I am selling that business for $1,200 million, और टैक्स वैक्स काट के एडजस्टमेंट करके मुझे $1,088 million मिलेंगे, मोटा मोटा 8,900 करोड़ रुपए मिलेगा, ठीक है। और ये बाकी वो शेयर कैपिटल बढ़ा रहा है, जिसके पेटे में 150 रुपए प्रति शेयर यानी कि 1500% पर शेयर अपने शेयर होल्डर्स को दे रहा हूं एज डिविडेंड। इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा तो उस पैसे का मैं करूंगा क्या। अगर आप स्क्रीनर में जाके इसका वो बैलेंस शीट देखते हैं, हिंदुजा
बैलेंस शीट देखते हैं तो कुछ मेरे पास 1000 करोड़ का कर्जा है। अभी मेरे पास 8,900 करोड़ का मेरे पास पैसा आ गया। मैंने एक अपना आधा बिजनेस बेच दिया किसी को, और मेरे पास स्क्रीनर में जाके देखो, आपको सिंपल लगेगा। 2 करोड़ 9 लाख शेयर हैं। 2 करोड़ 9 लाख शेयर को मैं 150 रुपए पर शेयर दे रहा हूं। आप कैलकुलेट करो कितना पैसा होता है। 2 करोड़ 9 लाख इंटू 150 पर शेयर डिवाइड बाय 1 करोड़। 3 4 5 6 7 313 crore rupees I am giving as extra dividend to my shareholders. 1,100 crore rupees I am paying the debt. 1100 करोड़ मैंने डेट पे कर दी, 320 करोड़ मैंने डिविडेंड बांट दिया, 1420 करोड़ हो गया। 8,900 करोड़ में से 1420 करोड़ मैंने खर्चा कर दिया। कितना बचा? 7,500। सर सामने आपको कंपनी का मार्केट कैप दिख रहा है? 6,000 करोड़। वाह यार, ये तो अंडर वैल्यूड होगी कंपनी। साली अरे 6,000। सर ये क्या हाँ, है? ये क्या है? अभी तो सर ये बल किन लोग ने बेच दिया फिर? ये 20% सर्किट लग गया लोअर। कल मंडे को फिर लगेगा। सर कहीं हम लोग कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे? कहीं मालूम पड़ा घुस गए और गए काम से। जाओगे काम से, इसमें घुसना मत। तभी तो मैंने बोला, मार्केट कैप से तो ज्यादा उनके पास कैश ही आ गया। तभी तो मैंने बोला जल्दबाजी ना करो, थोड़ा सा इसको पढ़ लो, समझ लो। अभी दिल्ली दूर है। पर उससे वो इतना रिटर्न तो जनरेट नहीं कर पाएगा ना सर। किसको पता? उसने ये थोड़ी बोला कि मैं पैसा कहाँ लगाऊंगा। हाँ वही तो डाउट है ना सर, कहाँ पे वो यूटिलाइज कर रहा है इतना पैसा। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। हाँ जी, बस आ रहा हूँ 5 मिनट। ओ कंप्लीट। ठीक है, तो आप हिंदुजा ग्लोबल को देखो, समझो, क्या समझ में आता है मुझे भी थोड़ा समझाओ। मैं भी थोड़े पैसे कमा लूंगा यार आपके साथ साथ। सर वन क्वेश्चन सर, लास्ट। हाँ पूछो। सर ये क्लास के रिलेटेड नहीं था। सबसे हाँ, पहले पूछो। सर एक मैं पता नहीं, मैं सबकी तरफ से बोलना चाहूंगा, मे बी अदर कैन आल्सो से द शेयर द सेम व्यूज और मे हैव डिफरेंट व्यूज। सर जब आप वो एक्सेल शीट पे जब अपने कर्सर को रखते हो ना, और जब वो हाँ रोटेट करते हो इधर से उधर, आप जाते हो अलग अलग बॉक्स में बताने के लिए, सर वो हाँ कर्सर का कलर सर वो ग्रीन से आप वो रेड कर दो, ताकि इरेस्पेक्टिव ऑफ द बार आप जिसमें भी जा रहे हो, कहीं ब्लैक रहेगा तो वहां पर हाईलाइट होकर बराबर दिखेगा आप लोग को। ये एक था सर। हाउ डू आई डू दैट सर? मेरे को पता नहीं कैसे करना है ये। और दूसरा ये सर कि सर बीएससी और एनएससी की नोटिसेस पढ़ते हैं सर, बट बहुत सारा रहता है, तो सर कुछ एनी स्पेसिफिक एरिया ऑफ फोकस when you read the heading you know that okay, this is something what you need to read. Sir, if you are really serious and if you want to go to part B, now 2 things should be on your fingertips. One is how any decision of the management, business selling or buyback or will affect number 1 your growth of the business and your return metrics. अगर आप ये चीज within a matter of few seconds or few minutes can you understand this and decode this, then only I can get you forward to understand what to read and what not to read and how to filter and how to make sense out of it. Okay. अभी के लिए सिर्फ आप इतना सा करो, कुछ भी हो रहा है, मेरा ग्रोथ कैसे इफेक्ट होगा, बढ़ेगा घटेगा, और मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल कैसे बढ़ेगा या घटेगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है और ये चीज आप डिकोड कर पाते हो अपने फिंगर टिप्स पे, आप बाकी के क्राउड से एटलीस्ट 50-60% आराम से आगे निकल जाओगे। अब आप इसी नोटिस का पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, अगर आप लोगों ने वो नोटिस खोला हुआ है तो। 3,500 करोड़ ना?
ये कह रहा है कि मैं उस पैसे में से 3,500 करोड़ मैं परमिशन ले रहा हूँ लोन्स को एक्सटेंड करने के लिए, लोन्स एज इज एसेट, जो लोन वो दूसरी कंपनीज को या अपनी सिस्टर कंसर्न फर्म्स को दे रहा है। तो शेयर होल्डर बोलता है यार भाई मैं पागल हूँ, मैं इस धंधे में इन्वेस्ट करके बैठा हूँ, तूने आधा धंधा बेच दिया जिसका मालिक मैं था, शेयर होल्डर मैं था, और तू मुझे क्या दे रहा है कि मैं 300 करोड़ 400 करोड़ डिविडेंड और 1000 करोड़ डेब्ट चुका रहा है, बाकी का 3,500 करोड़ तो तू किसी अरे गरे नत्थु केरे को दे रहा, तो उसमें मेरा क्या लेना देना। तो आई हैव बीन स्विंडल्ड एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। अगर ये पॉइंट नंबर 4 नहीं होता था तो stock would have gone up. So what you are giving me, just peanuts, 150 rupees a share, which is nothing. On a face value of 10 rupees, you are telling me that I am getting dividends of 1,500%, but maximum money you are lending out to somebody else where I have no information about. So is this a good practice or a bad practice? Definitely it's a bad practice. सर 4th पॉइंट के चक्कर में 150 रुपए का डिविडेंड तो ऐसे ही खा गया आज दिन भर। 150 रुपए का डिविडेंड तो कुछ भी नहीं है सर, 8,000 करोड़ में रहा है 300 करोड़। 150 रुपए डिविडेंड का मत देखो, अमाउंट को देखो ना, 2 करोड़ 9 लाख शेयर है इंटू 150 रुपए डिविडेंड डिवाइड बाय 1 करोड़ इज इक्वल टू अराउंड 315 करोड़। 1200 मिलियन डॉलर अगर आप रुपीस में कन्वर्ट करो, देखो कितना पैसा होता है। 4% सिर्फ दे रहा है सर रिटर्न में। हाँ, 1200 मिलियन इज अप्रोक्सीमेटली 1.2 बिलियन एंड 1 बिलियन इज 7,500 करोड़। तो मोटा मोटा 8,500-9,000 करोड़ तो तेरे को पैसा मिल रहा है, तो शेयरहोल्डर को क्या दे रहा है? 400 करोड़ का लॉलीपॉप, बाकी का क्या गायब। सर स्ट्रीट ये एक्सपेक्ट कर रहा था जिस तरह मेजेस्को में रिटर्न किया था पैसा पूरा, वो पूरा पैसा रिटर्न कर देगा। हाँ, पर इसने नहीं किया ना, तभी तो ठोक दिया। हाँ, इसने नहीं किया। हाँ, आज की तारीख में आपको 8,900 करोड़ के सामने आप 5600 या 6,000 करोड़ की मार्केट कैप देखो, आपको सस्ता लगेगा, लेकिन मंडे ट्यूजडे को फिर मारेगा, ये आपको अटकाएगा, 2-5% स्टॉक प्राइस ऊपर ले जाएगा, आप बोलोगे बहुत अच्छा ले लोगे, और फिर अटकाएगा ये। सो दिस इज बैड मैनेजमेंट एंड वंस अ चोर ऑलवेज अ चोर। जिसके ऊपर दाग लग गया, मार्केट उसको बहुत कम चांस है कि मार्केट उसको वैल्यूएशन देगा। अब जितना मर्जी येस बैंक बाय कर लो, जितना मर्जी डीएचएफएल बाय कर लो, पहले के भाव तो नहीं आने वाले ना। कि एक बार वो कलंक लग गया, दाग लग गया, तो खेल खत्म। सो किसी भी इंफॉर्मेशन को रीड करने से जल्दी उसके आउटकम पे नहीं आना चाहिए। स्लो डाउन योर प्रोसेस, जितना स्लो उतना अच्छा। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ यार, मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, आई एम गेटिंग ओल्ड एट 2x स्पीड बिकॉज आई वांट टू बी स्लोअर द बेटर। ट्रेडिंग में क्या होता है? खटाखट फास्ट। इन्वेस्टिंग इज स्लोअर द बेटर। नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, अपने आप समझ में आएगा। Ask yourself questions, simple questions. What do I understand in this? What do we now? If you have discussed this, यार मेरा पैसा आ गया, मेरा डेब्ट चला जाएगा, डिविडेंड चला जाएगा, my balance sheet will be cash rich, and what will happen? My number of equity shares, he has so much of money. Then what he can do? He can go and buy back stock. So that will reduce the shareholder equity. That will increase the ROEs and whatnot. But what actually will happen now? Balance sheet has to balance, right? If I am selling half of my business, so on the liability side, what is going to go down? My net worth. मेरा नेट वर्थ कितना है? 2,200 करोड़। तो 2,200 करोड़ का मेरा नेट वर्थ आधा मैं बेच रहा हूं, तो कितना रह जाएगा? 1,100। शेयर कैपिटल विल बी 21, बोरिंग्स विल बी गॉन। So when my balance sheet is going down by 2,300 crores from liability side, my assets is also has to go down by 2,300 crores from the asset side. तभी तो बैलेंस शीट बैलेंस करेगी कि नहीं करेगी? लेकिन मेरे एसेट में तो कैश आ रहा है। Asset is going up by 8,900 and the liability is going down by 2,300. How the hell my balance sheet is going to balance? Now you should be able to answer these questions within seconds. And once you are able to do that, then that is the time you can pick up any company and from the numbers reverse engineer the story, and then you know कि यार इस साल में ये हुआ था, इस साल में ये हुआ था, इस साल में ये हुआ था. Rather than reading all the 10-year reports like a gada, like a ghoda, I should go and respect my time and read these reports and get to the conclusion of what is actually happening.
So it's a good case study, Hinduja Global. How the balance sheet is going to balance? Get a sense to that. ये तो सीए साहब हैं किरण जी, वो हेल्प करेंगे सबकी ऑडिट रिपोर्ट बनाने में. सिंपल है. आप लोग को ये करके बताओ 8,900 करोड़ आ रहा है तो वो कहां जाएगा? एसेट साइड में. आधा मेरा धंधा चला जाएगा तो वो कहां से खत्म होगा? लायबिलिटी साइड से. नेटवर्थ खत्म हो जाएगी. नेटवर्थ इज गोइंग आउट. What is going out? What is coming in? How the balance sheet is going to balance? And what are going to be my newer return ratios 1 year down the line, 2 year down the line? Take a paper and pen. Try and calculate. See if your balance sheet matches or not. And what are the estimated return ratios you are able to compute. If you are able to do that, good and fine. You are getting ready for the next part. So do this exercise. And I would suggest everybody should do it. ठीक है. ओके सर. चलिए. ओके सर. थैंक यू. आई हैव द I'll just save the recording. Just save the 1 minute. What is तो maintained